Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss all the questions of CRPC which came in the exam paper of Haryana Judicial Services from the year 2010 to 2021. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. Exercise 3. A sentence to death by a lower court. The sentence must be confirmed by the High Court या फिर Supreme Court, Parliament या फिर an operational appeal. No. Shall be confirmed by the High Court. A is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया है? In section 368 of the CRPC. इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन कहाँ चला गया ये? 409. Next 86. A confession statement recorded in accordance with the special procedure under section 164 CRPC can be substantive evidence without being formally proved. बिल्कुल ठीक है ये. Cannot be no. It can be. A is the answer. सेक्शन बता ही दिया. अब in new CRPC this is section 183. Next 87. A proclamation under section 82 CRPC can be issued against a person against whom a warrant has been issued. Thus a proclamation can be issued against an accused offender या फिर सिक्योरिटी विटनेस. ऑल ऑफ दी अबव. डी सबके खिलाफ कर सकते हैं. डी इसका आंसर रहेगा. अब ये सेक्शन कौन सा हो गया है न्यू सीआरपीसी में? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 84. नेक्स्ट 88. A public prosecutor for the High Court is appointed under section 24 of the CRPC by the central government with the consultation of High Court या फिर state government या फिर state government या फिर state government और या फिर state government और central government after consultation with the High Court as the case may be, है ना. तो डी इसका आंसर रहेगा. नाउ इन न्यू सीआरपीसी सेक्शन 18. 89. In CRPC, cognizable offense has been defined in section 2C. B is the answer. अभी डेफिनेशन कहाँ चली गई है न्यू सीआरपीसी में? सेक्शन 21G. Next is 90. Compounding of offense under section 320 of CRPC results in acquittal of the accused under all circumstances या फिर acquittal of the accused only where charge has already been framed या फिर discharge of the accused the charge has not been framed. Acquittal होगा. A is the answer. इसके सब सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है ये. इन न्यू सीआरपीसी दिस इज सेक्शन 359. नेक्स्ट 91. एफआईआर कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन कौन सा है? 154. बी इज द आंसर. कितना कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अब न्यू सीआरपीसी में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 173. नेक्स्ट 92. एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव FIR not a piece of substantive evidence. It can be used during trial to corroborate the informant, to contradict the informant. Both के use कर सकते हैं. B is the answer. FIR का सेक्शन बता ही दिया. 154 of CRPC. न्यू CRPC में 173. Next 93. Hearing on sentence by magistrate is required on conviction in summon trial under section 255(2) and in warrant trial 248(2). Next is 94. Power under section 311 of CRPC can be exercised by the court to recall any witness already examined. Yes, to summon any witness who has been cited as a witness but not produced or examined before the evidence is closed. बिल्कुल ठीक है. फिर to summon any witness who has not been cited as witness. All of the above. D is the answer. Now this is section 348 in new CRPC. Next 37. After dismissal of a complaint under section 203, a fresh similar complaint on the same fact is banned if it is not banned but will be entertained only in exceptional circumstances. Is not banned and will be entertained in all circumstances. Is not banned but will be entertained only in exceptional circumstances. B is the answer. ये बात कर रहे हैं CRPC की. Next 39. कंप्लेंट में रिलेट टू कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, दोनों के लिए हो सकती है. सी इज द आंसर.
कंप्लेंट कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2D ऑफ CRPC में। न्यू CRPC में कहाँ चला गया सेक्शन ये? इन सेक्शन 21H में। Next is 40, if the person who is competent to compound offense is dead, then compounding cannot be done या फिर can be done by the LRs of the deceased without the permission of the court। सेक्शन 320 है कंपाउंडिंग और उसके सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ये। सो सी इज द आंसर। अब 320 कहाँ चला गया है? सेक्शन 359 इन न्यू CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट इज 41, in a bailable offense, conditions can be imposed while granting bail by the police officer. No, condition cannot be imposed or the court। बेलेबल तब कंडीशन क्यों लगाएंगे? नॉन बेलेबल कंडीशंस होती हैं। तो सी इज द आंसर। बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ थी? सेक्शन 2A ऑफ CRPC में, है ना। अब नाउ इन न्यू CRPC डेफिनेशन कहाँ पर चली गई है ये? अब हो गया है सेक्शन 21C ऑफ न्यू CRPC। नेक्स्ट 42, इन केस वेयर एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंडक्टेड इन अ रॉन्ग प्लेस, तो क्या होगा? द इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स शैल बी void ab initio या फिर कैन नॉट बी सेट असाइड एज void अनलेस इट ओकेजन इन फेलियर ऑफ जस्टिस। यही ठीक रहेगा। कैन नॉट बी सेट असाइड इवन इफ इट हैज ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस। जस्टिस फेलियर हुआ तो ऑब्वियसली सेट असाइड करना पड़ेगा। तो बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है? दिस इज सेक्शन 462 ऑफ CRPC। इन न्यू CRPC सेक्शन कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 508। Next 43, in computing the period of limitation, the time during which the accused avoided arrest by absconding has to be excluded या फिर remained absent from India has to be excluded। दोनों ही हो जाएंगे, both A and B। तो C इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन इज 470 सब सेक्शन 4। अब सेक्शन हो गया है कहाँ पर ये? 516 इन न्यू CRPC। नेक्स्ट 44, irregularities which do not vitiate trial have been stated in section कहाँ पर? 460 461। इट इज इन 460। A is the answer। Now this is section 506, ये हो गया 507 and onwards। 462 बता ही दिया, 508 हो गया है in new CRPC। Next 45, objection as to lack of territorial jurisdiction of the criminal court can be taken before at any time of the commencement या फिर can be taken at the any time of the after the commencement या फिर in appeal। Before or at the time of commencement of trial, A is the answer। SC 46, power to recall any witness or witnesses under section 311 can be exercised even after evidence of both sides is closed। बिल्कुल ठीक है। फिर after the evidence of the prosecution is closed या फिर before the evidence prosecution is closed, if the witness called पर no। A ही इसका आंसर रहेगा। Next is 48, section 428 of CRPC provides for concession to the effect that the period of detention undergone by the accused be set off against substantive period of imprisonment award या फिर in default of payment। पेमेंट वाला सेट ऑफ नहीं होता है, सब्सटेंटिव पीरियड होगा वो हो जाएगा सेट ऑफ। तो ए इसका आंसर रहेगा। नाउ दिस सेक्शन 428, अब सेक्शन हो गया है ये 468 इन न्यू CRPC। Next is 49, under section 167 CRPC, the magistrate can authorize detention for a total period of 90 days during investigation in cases of offences punishable with death, imprisonment for life and not less than 10 years। All of the above, D is the answer। 10 years से अगर लेस है तो 60 डेज का डिटेंशन पीरियड है डिफॉल्ट बिल। डिफॉल्ट बिल का प्रोविजन ये 167 अब कहाँ चला गया है? इन सेक्शन 187 ऑफ न्यू CRPC। Next is 50, under section 216 of CRPC, the court has a power add the charges already framed या फिर alter या फिर neither या फिर add or alter both। D is the answer। सेक्शन बता ही दिया है यहाँ पर। अब न्यू CRPC में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? Now this is section 239 in new CRPC। Next is 52, under section 315 of CRPC, an accused cannot be a witness। An accused can be compelled to give his own evidence generally या फिर can be called as a witness only on his own request in writing। Only on his own request in writing। C is the answer। 315 क्या है? accused witness है ना, accused evidence। तो सेक्शन कौन सा हो गया न्यू CRPC में? सेक्शन 353 न्यू CRPC। नेक्स्ट इज 53, अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC, द jurisdiction to cancel the bail वेस्ट विद किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, मैजिस्ट्रेट।
कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट दोनों के पास ही है, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 16, assault or use of criminal force otherwise than on grave provocation under section 353 of IPC is which kind of offense? अब देखिए ये क्वेश्चन तो लग रहा है आईपीसी का, बट दिस इज फ्रॉम सीआरपीसी। अब पूछ रहे हैं बेलेबल है कॉग्निजेबल या बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल। दिस इज बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, बी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया इसके लिए आप देखिए, जो स्केड्यूल है फर्स्ट स्केड्यूल वहाँ कॉलम्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बेलेबल है या नहीं है। अब इन न्यू आईपीसी ये सेक्शन जो है 353 कहाँ चला गया है, इन सेक्शन 131 आईपीसी। स्केड्यूल तो वही है न्यू सीआरपीसी में भी। नेक्स्ट 17, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ट्राइबल बाय, कौन करेगा, अर्लियर बाय एनी मैजिस्ट्रेट, बट अब जो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का जो प्रोविजन है वही हटा दिया गया है आईपीसी से। अब सिर्फ अबेटमेंट रह गया नए सेक्शन 108 इन न्यू आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन सीआरपीसी बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 की अमेंडमेंट थी, यही इसका आंसर है। Next is 19. The stipulation that all offences under IPC would be tried according to the provision of CRPC is contained in which section? It is 5436. It is section 4. B is the answer. New CRPC में भी section ये 4 ही है, same ही है। Next is 20. In relation to the commission of which of the following offences the general public does not have duty under section 39 CRPC to give information to the nearest magistrate or police officer? देखिए जब आप सेक्शन 39 देखेंगे तो वहाँ पर सर्टेन ऑफेंसेस लिखे हुए हैं कि भाई अगर ऐसा आपके सामने कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, इस टाइप में कोई लड़ाई झगड़ा और ग्रीवियस हर्ट का हो रहा है, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है पुलिस को। तो इसमें से कौन सा नहीं है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग लाइट हाउस है, तो ये तो सारे लिखे ही हुए हैं, है ना। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, हाउस ट्रेसपास के लिए मेंशन नहीं किया गया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ जो सेक्शन है ये 39 सीआरपीसी, अब न्यू सीआरपीसी में हो गया है 33 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 41B CRPC? द पुलिस ऑफिसर shall bear an accurate identification of his name, या फिर bear a visible and clear identification of his name, या फिर shall prepare a memorandum of arrest to be countersigned by the person, या फिर shall inform the person arrested that he has a right to legal counsel during interrogation। तो 41B में ये तीनों लिखे हुए हैं, दिस इज 41D है ना, बट अब ये सब चेंज हो गया है। अब ये सेक्शन कहाँ चला गया है, न्यू सीआरपीसी में। देखिए अभी आज की डेट में जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब जो है जो न्यू क्रिमिनल कोड है अभी लागू नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, बट जो भी आने वाले जो एग्जाम्स हैं, अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि भाई मैंने किसके लिए बनाई, बिकॉज इट इज़ फॉर फ्यूचर। जो आने वाली वीडियो, जो आने वाले एग्जाम्स हैं नेक्स्ट ईयर, मान लो कि नेक्स्ट ईयर भी हरियाणा फिर से आता है या फिर और कभी भी हरियाणा दोबारा आता है, ऑब्वियसली उसमें जो है नए क्रिमिनल कोड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब न्यू सीआरपीसी में सेक्शन हो गया है 36। Next 22, under section 53A of CRPC, when a person is arrested on the charge of committing rape, the arrestee may be examined by a registered medical practitioner other than a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by local authority when the latter is not available within the radius of 16 km from the place कहाँ से where the offence has been committed, या फिर the arrest was made, या फिर where the nearest police station is situated, या फिर nearest court is situated। तो where the offence has been committed, A is the answer। अब न्यू सीआरपीसी में सेक्शन कौन सा हो गया है ये, दिस इज नाउ सेक्शन 52 इन न्यू सीआरपीसी। नेक्स्ट 23, which one of the following is authorized under section 110 CRPC to require security for good behavior for habitual offender within the local jurisdiction? तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर CGM DM EM, इट इज़ फॉर EM, डी इज़ दी आंसर। देखिए मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ है एक, मैं हर बार जब भी कोई क्वेश्चन आता है इसका तो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, और आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे अगर दूसरी स्टेट्स की भी तो वहाँ भी मैंने डिस्कस किया हुआ कई बार ये। तो सेक्शन 106 से स्टार्ट होते हैं, 107, 108, 109 एंड 110। कौन करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना। इसमें सब में EM 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 EM। 2 सेकेंड लगेंगे, चार्ट आप बना लीजिए। ये कितने साल के लिए है ये, सिक्योरिटी फॉर 3 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर। 106 किसका है, फॉर कन्विक्शन, अदर केसेस, सेडिशियस मैटर, सस्पेक्टेड एंड हैबिचुअल ऑफेंडर।
अब जो सेडिशियस का वर्ड जो हटा दिया गया है वो सर्टेन ऑफेंस कर दिया गया है। नए सेक्शन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये? नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 125, ठीक है ना। जो 110 है ये कौन सेक्शन हो गया? 129। सेक्शन चेंज कर लेना, बाकी सब सेम ही है, चार्ट वही रहेगा अगर मान लो कि कभी आप देख रहे हैं नया एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC? लेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, नो ये नहीं कर पाएगा। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक, ये भी नहीं आएगा। तो बोथ बी एंड सी कैन नॉट क्लेम, पूछा हुआ है तो सी इज द आंसर। नाउ सेक्शन 125 हैज बीन चेंज्ड टू सेक्शन 144 ऑफ न्यू CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next 25, which one of the following is not an act for the preservation of which an order cannot be made under section 144 CRPC? Disturbance of the public tranquility, तो यहाँ तो कर ही देंगे। Annoyance to a person lawfully employed या फिर injury to any person lawfully employed, तो तीनों के लिए हो जाएगा, डी इसका आंसर रहेगा। अब सेक्शन 144 हो गया, सेक्शन 163 इन न्यू CRPC। Next 26, which of the following is a ground on which a witness under section 161(2) of the CRPC may refuse to answer questions put by a police officer? Answer would have tendency to expose him to a criminal charge or a penalty or forfeiture, all of the above. D इसका आंसर रहेगा, all of the above. D is the answer. और सेक्शन 161 क्या हो गया है? 118 न्यू CRPC. Next 27, any court may alter or add to any charge any time before closing her argument. Judgment is written या judgment is pronounced? Judgment is pronounced. C is the answer. सेक्शन कौन सा है? 216 of CRPC. अब न्यू CRPC में कहाँ चला गया सेक्शन? इन सेक्शन 239. Next 28, chapter 21A of CRPC was incorporated in the year 21A क्या है? For plea bargaining, है ना? कब आया था? By the amendment of 2006. So B is the answer. अब now in new CRPC, this is chapter 23 और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो गए हैं? 289 से और 300 तक. Next 29, in case of plea bargaining by the parties, no judgment may be delivered by the court. Judgment may be delivered in private या फिर in open court. It shall be in open court. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 265F, है ना। अब न्यू CRPC सेक्शन कौन सा हो गया है? ये 294. Next is 30. In which of the following cases it has been held that the presence of a lawyer at the time of interrogation cannot be demanded as a matter of right? तो कौन सा केस है? फूलपंदी वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज या फिर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जुगल किशोर सामरा। सो दोनों ही हैं एक्चुअली। ये केस है 2001 का एंड फूलपंदी इज एन ओल्ड केस 1992 एंड सेटल्ड पोजीशन टिल टुडे। सो बोथ हो गए। सी इज द आंसर। जुगल किशोर सामरा में जो है इसी फूलपंदी को जो है डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ नलम क्रिमिन नल्ला पियोना सीने लेगे। अब देखिए हम तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, बट हाउ इज प्रोनाउंस्ड? न्यूलम क्रिमिन न्यूला पियोना जाइने लीगी। दिस इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड इन प्रॉपर लैटिन। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए नलम मतलब नो, नथिंग, इज क्राइम, क्रिमिनल मतलब क्राइम, फॉर नो पनिशमेंट इन लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट ए प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ। पियोना मतलब पीनल, सीने मतलब विच इज एग्जिस्टिंग, लीगे मतलब लॉ। ठीक है, तो कोई भी क्राइम या पनिशमेंट नहीं होगी जब तक कि वो प्री एग्जिस्टिंग पीनल लॉ उस पर ना बना हो। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ए मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, नो ये तो रॉन्ग है। इसका इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूशन, इसका मीनिंग ये होता है एन एक्ट मस्ट बी अकम्पनीड बाय क्रिमिनल इंटेंट टू कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। ये कौन सा? ये मैंसरिया वाली लीगल मैगजीम है, एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मैंसिट्रिया। Next is 12. Which section of CRPC provides for confirmation by the High Court of an order of death sentence passed by the Session Court prior to its execution?
देखिए पावर ऑफ कंफर्मेशन कहाँ पर दी गई है, इन सेक्शन 368 ऑफ द CRPC। एंड 366 में क्या है, सबमिशन फॉर कंफर्मेशन। सबमिशन होता है 366 में, कंफर्मेशन की पावर हाईकोर्ट की 368 में, तो सी इसका आंसर रहेगा। अब जो है सेक्शन कौन कौन से हो गए हैं, 366 हो गया है अब ये 407 एंड 368 हो गया है 409 इन न्यू CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next 13, when the High Court of any session judge calls for to examine the record of any proceeding before any inferior criminal court, it is known as review, revision या reference. It is revision. B is the answer. हाई कोर्ट की पावर कहाँ है रिवीजन की, इन सेक्शन 397, और सेशन जज की कहाँ है, इन 399। अब जो है कहाँ चले गए हैं सेक्शन ये, इन 438 एंड 440 ऑफ न्यू CRPC। Next 14, a CJM may pass sentence of imprisonment exceeding 7 years, फिर not exceeding 7 years, not exceeding 7 years, B is the answer. सेक्शन 29 ऑफ CRPC में प्रोवाइड किया गया था ये। अब इन न्यू CRPC सेक्शन कहाँ चला गया है, इन सेक्शन 23 ऑफ न्यू CRPC। नेक्स्ट इज 15, एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल मे बी मेड बिफोर CJM, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बोथ, B and C, D is the answer. प्रोविजन कहाँ है, इन सेक्शन 438 ऑफ ओल्ड CRPC। न्यू CRPC में सेक्शन कहाँ चला गया है ये, अब चला गया है इन सेक्शन 482 न्यू CRPC। नेक्स्ट 36, सेक्शन 173(8) ऑफ CRPC डील्स विद फ्रेश इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, B इज द आंसर। अब न्यू IPC में सेक्शन 173 क्या हो गया है, इट इज नाउ सेक्शन 193 in new CRPC. Next 37, Form 32 of second schedule of CRPC provides the format for framing. और देखिए फ्रेमिंग ही लिख दिया है यहाँ पर, तो क्या फ्रेम करते हैं, समन फ्रेम नहीं करते, समन से इम्पोर्टेंट इशू होते हैं। यहाँ से भी काफ़ी एक आइडिया लगा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है। चार्जेस, A इज द आंसर। अब न्यू IPC में सेकेंड शेड्यूल में इस फॉर्म को कर दिया गया है फॉर्म 33। Next 60, who may record a confession statement under section 164? Police officer, executive officer या फिर judicial magistrate who has jurisdiction only? No, any judicial magistrate, D is the answer. अब इन न्यू CRPC सेक्शन कहाँ चला गया है ये, इन सेक्शन 183। Next 61, what is the time limit in section 468 CRPC for taking cognizance in case of defamation? अब देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए जो डेफेमेशन है उसकी पनिशमेंट कितनी है, 2 ईयर्स की। मतलब क्या हुआ, अबव 1 ईयर है एंड लेस देन 3 ईयर है, तो कितना होगा लिमिटेशन इसमें, 3 ईयर्स का। सो C इज द आंसर। अभी सेक्शन 468 कहाँ चला गया है न्यू CRPC में, दिस इज नाउ सेक्शन 514। नेक्स्ट 62, परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय, कौन कर सकता है, Magistrate in any part of India, any part of state having jurisdiction to try the case. C is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 155 सबसेक्शन 2 में। अब सेक्शन कौन सा हो गया है ये, दिस इज नाउ 174 इन न्यू CRPC। नेक्स्ट 63, ऑफेंसेस ऑफ IPC अदर देन मेंशन इन सेक्शन 320 of CRPC are not compoundable या फिर compoundable with the permission of the court of session high court, not compoundable, A is the answer. Now section 320 कहाँ चला गया है, section 359 in new CRPC. Next 64, the compensation to the victim under section 357 of CRPC can be passed by trial court, appellate court, divisional court, any of the above court. D is the answer. अब ये section कौन सा हो गया है, now this is section 395 in new CRPC. Next 107, the victim compensation scheme under section 357A was incorporated कब आई थी ये, by the amendment of 2004, 5 and 9, 9, C is the answer. अब इसको प्रॉपर प्रोविजन बना दिया गया है इन न्यू CRPC। सेक्शन कहाँ चला गया है ये, इन सेक्शन 395 ऑफ न्यू CRPC। Next 108, what offense is bailable?
कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे? मेंशन्ड एज बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, या फिर इन ऑल केसेस ऑफ समन ट्रायल, या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, या फिर ऑल व्हिच आर नॉट ट्रायबल बाय सेशन। मेंशन एज बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी, ए इज द आंसर। डेफिनेशन दी गई थी बेलेबल ऑफेंस की कहाँ पर? इन सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी। अब न्यू सीआरपीसी में सेक्शन कहाँ चला गया है? इन सेक्शन 2C। नेक्स्ट इज 4. Composition of an offense under CRPC will result in dash of the accused. क्या होता है? Acquittal. So A is the answer. सेक्शन कौन सा है CRPC में? सेक्शन 320, एंड वहाँ पर सब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। अब चेंज हो गया सेक्शन कौन सा हो गया है अब? दिस इज नाउ सेक्शन 359 ऑफ न्यू सीआरपीसी। नेक्स्ट 5. इन वन ट्रायल X is convicted against which no appeal lies, whereas conviction against Y is appealable. Whether X can appeal against his conviction? Yes, he can. Obviously, B is the answer. प्रोविजन कहाँ पर है? ये सेक्शन है 380 इन ओल्ड सीआरपीसी। न्यू सीआरपीसी में कहाँ गया ये? इन सेक्शन 421 इन न्यू सीआरपीसी। नेक्स्ट 6. Under section dash of CRPC, it is mandatory for a police officer to inform the person arrested without warrants about the right of bail if the offense is not bailable. Which section is that? It is 50. B is the answer. और अब कहाँ चला गया है सेक्शन ये? Now this is section 47 in new CRPC. Next 42. Which of the following section of CRPC declares accused person to be competent defense witness? That is 315 in old CRPC. न्यू CRPC में कहाँ गया सेक्शन ये? 353 में। नेक्स्ट 43. Which of the following is incorrect response in the light of CRPC? Inquiry is conducted by the court. ये बिल्कुल ठीक है। Inquiry is conducted after framing of charges. No, this is wrong. Prior framing of charges होता है yes, by the magistrate ये भी कर सकते हैं yes. तो wrong कौन सा हुआ फिर? B is the answer. CRPC 1973 में डेफिनेशन थी इंक्वायरी की इन 2G, अब कहाँ हो गई है ये? इन 2K इन न्यू CRPC। This is 44. Section 482 CRPC saves inherent power of High Court. Obviously High Court की inherent power है, A is the answer. अब कहाँ चले गए हैं inherent power of High Court? In section 528 in new CRPC. Next is 45. No court shall take cognizance of an offence after expiry of dash if the offence is punishable with fine only. तो अगर फाइन ओनली ऑफेंस है तो कितने दिन का लिमिटेशन पीरियड है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस? दैट इज 6 months. ए इज द आंसर. इन ओल्ड सीआरपीसी दिस इज सेक्शन 468, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर फाइन ओनली है तो 6 month का लिमिटेशन पीरियड है, अगर अप टू 1 year की इम्प्रिजनमेंट है तो 1 year, अप टू 3 year की इम्प्रिजनमेंट है तो 3 year, एंड आफ्टर 3 year देर इज नो लिमिटेशन। अब इन न्यू सीआरपीसी कहाँ से लगा गया सेक्शन ये? इन 514। ए इसका आंसर रहेगा। Next is 74. If trial court is satisfied that convict intends to file appeal, it shall release him on bail under section 389(3) CRPC, where convict is on bail and awarded imprisonment is not exceeding 3 years. This is correct. जो बेलेबल ऑफेंस होगा वहीं पर उसको रिलीज करेंगे, और 3 एंड अबव वाले पर नहीं करते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। न्यू सीआरपीसी सेक्शन कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 340 ऑफ न्यू सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 75. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज इंक्लूडेड इन कौन सी लिस्ट में है? कंकरेंट, यूनियन, स्टेट? इट इज इन कंकरेंट लिस्ट। ए इज द आंसर। एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 76. ए प्रोक्लेमेशन अंडर Section 82 CRPC shall specify time for not less than 30 days from a date of such proclamation. डेट कौन सी? डेट ऑफ इशूइंग या फिर रिसीविंग या पब्लिशिंग? पब्लिशिंग ऑफ सच प्रोक्लेमेशन। सी इज द आंसर। न्यू सीआरपीसी में कहाँ चला गया है ये सेक्शन ये? नाउ इट इज 84 इन न्यू सीआरपीसी। नेक्स्ट 77. अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोर्ट कैन ग्रांट एडजमेंट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ बाय अ पार्टी? कहाँ पर है ये?
इन सेक्शन 309 है और यहीं पर नहीं है, तो नन ऑफ द इसका आंसर रहेगा, ई इज द आंसर। अब न्यू सीआरपीसी में सेक्शन हो गया है ये 346। नेक्स्ट इज 78। If in a complaint case it is made to appear to magistrate that an investigation by the police is in progress in relation to the same offence, which of the following orders a magistrate may pass under section 210 CRPC? Return the complaint to be refiled? No, it is wrong. Stay the proceedings of the inquiry and or trial on such complaint? ये बिल्कुल ठीक है. Call a report of investigating officer? ये बिल्कुल ठीक है. Reject the complaint? No. Refer the complaint to CJM? No. So 2 and 3 are correct. C is the answer. Next is 99. What is the maximum sentence of imprisonment which can be passed on conviction in summary trial under CRPC? 15 days, 30 days, 2 months, 3 months. It is 3 months. D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 262 के सबसेक्शन 2 में. अब 262 क्या हो गया है? 285 और उसके सबसेक्शन 2 में ही मेंशन किया गया है इन न्यू CRPC. Next is 100. In all proceedings under section 125, the evidence shall be recorded in the manner prescribed for summons case, warrant case, session या summary. Summons case. A is the answer. 125 कहाँ चला गया है? In section 144 new CRPC. Next is 115. Under section 199 CRPC, in a prosecution for defamation of the vice president, session court may take cognizance of such offence without the case being committed to it, but only upon a complaint in writing made by the कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डीजी या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर. डी इज द आंसर. वहीं पर मेंशन किया गया है. अब 199 क्या हो गया है? सेक्शन 222 इन न्यू सीआरपीसी. नेक्स्ट 116. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब decided on so and so settled controversy regarding law contained in which section of CRPC? तो सेक्शन था वो 319 CRPC. C is the answer. अब हो गया है ये 358 CRPC in new CRPC. Next is 74. Which one of the following is not correct? Where a court is not competent to frame charge in an offence, it shall not be competent to permit और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज बाउंड टू रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सच इंस्ट्रक्शन वुड नॉट अमाउंट टू एन एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंस. इज ऑल्सो करेक्ट. फिर है एन ऑर्डर ग्रांटिंग परमिशन टू विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन सोलली ऑन द ग्राउंड दैट वेयर अबाउट ऑफ द एक्यूज वाज नॉट अवेलेबल is permissible. No, this is not permissible. The magistrate has discretion to grant or refuse permission to withdraw the prosecution. This is correct. So C is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? दिस इज सेक्शन 321 ऑफ ओल्ड सीआरपीसी. न्यू सीआरपीसी में कहाँ पर है सेक्शन ये? न्यू सीआरपीसी दिस इज सेक्शन 360. नेक्स्ट 97. Under section 173 CRPC as amended in 2018, the investigation into offence of rape shall be completed within a span of कितने दिन में फिनिश करना है उसको? 6 months, 4 months, 1 month, 2 months. D is the answer. 173 1A में लिखा हुआ है ये. एंड इन न्यू CRPC अभी सेक्शन कौन सा हो गया है? इन सेक्शन 193 सब सेक्शन 2. Next 98. A person can be arrested without warrant as preventive precautionary measure या फिर obtaining correct name and address या फिर securing attendance of accused. All of the above. D is the answer. Next is 99. A warrant of arrest is a command and must be in writing, फिर must be signed, sealed and issued by magistrate या फिर addressed to the police officer. All of the above. D is the answer. अब सेक्शन है ये 72 in new CRPC. Next is 100. Who among the following is not entitled to claim maintenance under section 125 CRPC? तो divorce wife so long as she does not marry, ये है unmarried sister, ये नहीं ले सकती. Adoptive mother वो पहले अपने चिल्ड्रन से लेगी, बाद में जो है इससे ले सकती है. Illegitimate minor child ये ले सकता है. Concubine नहीं ले सकती. देखिए नोट एंटाइटल लिखा हो तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में जो है 3 ऑप्शन ठीक थे, तो इसको जो है डिलीट कर दिया गया था. ऑप्शन ठीक नहीं बनाए, क्वेश्चन ही ठीक नहीं बनाया. नेक्स्ट 101.
Chapter 21A dealing with plea bargaining has been inserted by the Amendment Act of 2005. A is the answer. अब कहाँ चला गया है ये? दिस इज चैप्टर 23 एंड सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 289 से और 300 तक. SC 102 Section 167 CRPC provides that the nature of custody can be altered from judicial custody to police custody and vice versa. This alteration can be done during the period of only first 15 days. A is the answer. Because police custody can be given up to only 15 days. अब जो थोड़ा चेंज कर दिया गया है, अब हो गया सेक्शन 187 in new CRPC. SC 103 the maximum number of offences of the same kind that can be tried together is 5, 6 to 3. 3. D is the answer. सेक्शन कौन सा था ये? 219 CRPC. अब सेक्शन कौन सा हो गया है? It is now 242. SC 104 as per the provision of CRPC as amended in 2005, a surety has declared the number of accused for whom he is surety under section. अमेंडमेंट से आया तो 441A है ये. सो बी इज द आंसर. अब सेक्शन कौन सा हो गया है? डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी इज सेक्शन 486 इन न्यू CRPC. SC 105 evidence shall be taken down by the magistrate either himself or by dictation in open court. Which amended provision of CRPC permits audio video electronic mean in the presence of advocate of the accused? सेक्शन कौन सा है ये? 74 या फिर प्रोवाइड 275(1). इट इज BB इज द आंसर. नाउ दिस इज सेक्शन 310 इन न्यू CRPC. SC 106 rehabilitation scheme for victim compensation is prepared on the recommendation of the court shall decide the quantum of compensation. कौन करेगा? अब who shall decide the quantum of compensation? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल, कोई भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं. सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा था ये? 357A एंड सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ था. अब सेक्शन कौन सा हो गया है ये? नाउ दिस इज सेक्शन 396 इन न्यू CRPC. SC 107 as per the provision of CRPC, offences can be compounded under section 320 by the legal guardian of a person under the age of 18 years who is an idiot, lunatic, all of the above. D is the answer. Now compounding कहाँ पर हो गया है? न्यू सेक्शन in section 359 of new CRPC. SC 108 as per the provision of section 315 CRPC, an accused can be compelled to give his own evidence. Generally no, only on own request in writing. C is the answer. अभी सेक्शन कौन सा हो गया है? दिस इज नाउ सेक्शन 353 ऑफ न्यू CRPC. SC 109 as per the provision of section 437 CRPC, the jurisdiction to cancel the bail vests with the magistrate competent to try or entertain the offence, या फिर magistrate where the magistrate has not ordered the release on bail, या फिर magistrate only where the magistrate has ordered release on bail. C is the answer. अब बिल के प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 478 से लेकर और 496 तक. चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 35 इन न्यू CRPC. SC 110 as per the provision of CRPC, surety can be sentenced to civil imprisonment in default of payment of penalty under the surety bond for maximum period of कितना है? 2 months, 6 months, 5 months. 6 months. B is the answer. Now this is section 491. क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर CRPC द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी 3 years. कौन से केस में होगा? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन टर्म एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 years. सो A इज द आंसर. और ये कहाँ पर मेंशन है? देखिए लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस मेंशन है आपके सेक्शन 468 ऑफ CRPC में. ठीक है, वहीं पर ही लिखा हुआ है ये. तो प्रोविजन इसका सेक्शन 468 में. सो A का आंसर रहेगा. अब आगे 56 द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम हैज बीन इंसर्टेड इन CRPC इन कब आई थी? 2009 में. सो B इज द आंसर. 2009 का अमेंडमेंट एक्ट था विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2009.
राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 27 ऑफ द सीआरपीसी डील्स विद ट्रायल। देखिए अब यहाँ पर है ना कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ट्रायल तो देखिए स्टार्टिंग के सेक्शन में ट्रायल तो है नहीं, बट सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कि आप जो है जुवेनाइल्स को कैसे डील करेंगे। जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, एनी पर्सन अंडर 16 ईयर ऑफ एज मे बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सीजेएम। ठीक है, तो वहां पर इसलिए ट्रायल है किसकी, जुवेनाइल्स की। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस हैज बीन डिस्कस्ड अंडर, कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? इट इज इन चैप्टर 11। देखिए चैप्टर 9 में क्या है, मेंटेनेंस वाला है। 10 में क्या आ गया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर वाला, धारा 144 वाला। ठीक है, फिर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस आ गया, उसके बाद क्या आ गया, एफआईआर वाला। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 59 सेक्शन 166A सीआरपीसी डील्स विद क्या है, इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड इंडिया। सो डी इज द आंसर। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम कहाँ पर दिया हुआ है? इट इज मेंशन इन 164A रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रेप विक्टिम। तो ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके 164 के 5 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 वुमेन डिटेन्ड बिलो एज ऑफ 18 ईयर शैल बी सेंट टू। देखिए ये प्रोविजन दिया गया है आपके सेक्शन 167 के प्रोवाइजो 2 में। ठीक है, और वहाँ पर लिखा गया है कि आप उसको रिमांड होम या फिर रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन भेज सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए की रिमांड होम। सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 101 सीआरपीसी से क्वेश्चन आ गया, केस डायरी कहाँ मेंशन है? स्पेसिफिकली मेंशन इन 172। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारी आ चुका है बहुत सारे पेपर्स में। उत्तराखंड में तो पूछते ही रहते हैं एक साल छोड़ के एक बारी। हरियाणा में भी पूछ चुके हैं, पहले एडी में भी आ चुका है। ये जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बारी जो है डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 प्रिंसिपल ऑफ स्पीडी ट्रायल एंड लिमिटेशन पीरियड फॉर कंप्लीटिंग ए ट्रायल ऑफ सर्टेन केसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर कितने में है? ये 309 में। 301 में क्या हुआ है, अपीयरेंस किसकी, पीपी की। 305 में क्या दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन और सोसाइटी अगर अक्यूज्ड है, इज अक्यूज्ड। ठीक है, 308 में क्या दिया हुआ है, ट्रायल ऑफ पर्सन जिसको टेंडर पार्डन किया गया था, नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशन ऑफ टेंडर पार्डन। इसका आंसर क्या रहेगा, 309। नेक्स्ट इज 103 एट द स्टेज ऑफ ट्रायल प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन कैन बी विड्रॉन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। कब, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, एट एनी टाइम बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। तो एनी टाइम कहां पर मेंशन है, ये मेंशन है आपके सेक्शन 321 सीआरपीसी में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग में बी फाइल्ड, कौन फाइल कर सकता है? एक्यूज फाइल करेगा, ऑब्वियसली प्री बार्गेनिंग उसी को चाहिए ना। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 394 ये क्वेश्चन में बहुत बारी आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बारी पेपर में, क्या करते हैं ना वो मैच दी फॉलोइंग करते हैं। अब अगर उत्तराखंड के पेपर देखें उसमें बहुत बारी पूछा हुआ, हरियाणा में डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान में डिस्कस कर चुके हैं इसको, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो क्या है, अबेटमेंट ऑफ अपील। सो सी इज द आंसर। कई बार ये पूछते हैं भी कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा मैच कर देंगे, सेक्शन दे देंगे भाई कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसमें भी पूछ चुके हैं ये। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल। अब देखिए 161 में स्टेटमेंट लिया, किसने ली है, पुलिस ने ली है। क्या आप जो पुलिस की स्टेटमेंट है उससे विटनेस को कोऑपरेट कर सकते हो? नो। कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? यस। इसका आंसर क्या रहेगा, बी। ऑलराइट, सो बी इज द आंसर। So friends, here we have discussed all the questions of CRPC which came in the exam paper of Haryana Judicial Services from the year 2010 to 2021. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।